Good afternoon, all of you. Today we are discussing about the oxygen therapy for the child and adult. Myself Himanshu Soni in the Department of Nursing College, Sitapura, Jaipur, and the sub-specialty is the cardiovascular thoracic department, MSN department. The outline we are discussing about the definition of oxygen therapy, type of oxygen therapy, purpose of using the oxygen therapy, administration of oxygen therapy and complication of oxygen therapy. So first discussing about definition. The oxygen is a colorless, odorless and the tasteless gas that is essential for the survival of the functioning and proper functioning of the body. Because of oxygen is carried out by the hemoglobin and hemoglobin substance is essential for your body metabolic functions. So oxygen is an essential gas for the survival. What is the meaning of O2 therapy? O2 therapy is the administration of oxygen at a concentration of pressure greater than that found in the environment atmosphere. The air that we breathe contain approximately 21% approximately. The air that can be breathed, air inspired from the atmosphere, that is contained the 21% of oxygen, and in the exhalations amount of the oxygen is a 16%. So the 5% of oxygen is consumed for the metabolic functions of the body, and the compare of the carbon dioxide, CO2 gases. The CO2 gases is in inhalations, the content is the 0.4%, and in the exhalations conditions and the expiratory conditions, the CO2 content is the 4%. So the nitrogen gases 78% inhalations and 78% also exhalations. The purpose of oxygen therapy: to relieve the dyspnea and to increase oxygen saturation in tissue where the saturation level are too low due to the illness or injury. पर्पज़ इसका ऑक्सीजन थेरेपी का पर्पज़ क्या है? जहां ऑक्सीजन की कैपेसिटी, ऑक्सीजन का सैचुरेशंस, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशंस बॉडी के अंदर अगर रिड्यूस हो गया है तो उस कंडीशंस में उस कंडीशन को रिलीव करने के लिए, उस कंडीशन से इम्प्रूव करने के लिए हम ऑक्सीजन थेरेपी को एडमिनिस्टर्ड करते हैं. कुछ कंडीशंस हैं, कुछ इंडिकेशंस हैं जहां पर हमें ऑक्सीजन थेरेपी की नीडेड होती है, आवश्यकता होती है. That is, the first is documented hypoxemia. बोले तो hypoxemia means the oxygen concentrations is too low in the blood circulations, in the blood, and the hypoxia is the oxygen concentrations is low in the body. So in this conditions hypoxemia जो conditions होती है, इस conditions के अंदर भी हमें ऑक्सीजन थेरेपी की needed होता है, आवश्यकता होती है. Second condition है in adult, arterial oxygen saturation is below 90%. अगर 90% से नीचे अगर saturation आता है या 94% से अगर saturation below आता है तो उस conditions के अंदर हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन की नीडेड होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि बॉडी हंगर करती है ऑक्सीजन के लिए, तो उस कंडीशंस के अंदर हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड करना होता है. थर्ड कंडीशन है सीवियर ट्रॉमा वाला केसेस है, जैसे बोले तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए वाला केसेस है. उस कंडीशंस के अंदर भी डिस्निया वाली प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में भी हमें ऑक्सीजन थेरेपी की नीडेड होती है. फोर्थ है अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एंड सीवियर इन्फेक्शंस. मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एमआई के केसेस के अंदर भी क्या होता है कि ऑक्सीजन अमाउंट कम हो जाता है. उस कंडीशंस में क्या होता है कि जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है या ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो उस कंडीशंस के अंदर भी बॉडी की नीडेड इंक्रीज हो जाती है, बॉडी की आवश्यकता बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में भी हमें ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन है सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जस्ट लाइक द अस्थमा एंड निमोनिया.
ये अस्थमा एंड निमोनिया वाले केसेस के अंदर भी हमें ऑक्सीजन की नीडेड होती है। अस्थमा बोले तो अस्थमा की कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट जो होता है उसका जो सैचुरेशन लेवल है वो लो हो जाता है जब अस्थमेटिक अटैक कंडीशंस आती है। निमोनिया वाले केसेस में क्या होता है कि निमोनिया के अंदर इन्फेक्शंस हो जाता है, किसमें जो प्राइमरी लंग टिश्यूज़ होते हैं, जो प्राइमरी फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस कंडीशंस में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एल्वोलाई रिड्यूस हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी होता है। 6 कंडीशन है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो ये जो कंडीशंस है, दिस कंडीशंस इन्वॉल्व द 2 डिजीज कंडीशंस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। So in these conditions the oxygen content are too low due to the destructions of the alveoli, distension of the alveoli due to the emphysema. So in this condition exertional dyspnea we can see in this COPD condition. So the oxygen content is low, then the requirement of oxygen is increases. पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाला केस है, उसमें भी नीडेड होता है पोस्ट एनेस्थेटिक रिकवरी बिकॉज ऑफ द पोस्ट एनेस्थेटिक रिकवरी। मीन्स जो एनेस्थेसिया जब हम देते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो होता है वो लो हो जाता है, सॉरी बोले तो रिलैक्सेशंस, जो अपनी मस्कुलर जो फंक्शनिंग है वो रिलैक्सेशन स्टेट में चला जाता है, और उस कंडीशंस के अंदर भी हमें क्या होता है ऑक्सीजन की नीड होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो डायफ्राम जो मसल्स होती है इट इज़ द प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स। तो इस कंडीशंस में भी क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के लिए जो मसल्स, जो इंस्पिरेशन के लिए जो मसल्स जो हमें हेल्पफुल करती हैं, तो वो भी क्या होता है अफेक्टेड होती हैं, बोले तो रिलैक्सेशन स्टेट में होती हैं। तो उस कंडीशंस में भी हमें ऑक्सीजन की नीडेड होती है। इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड जस्ट लाइक द बर्न एंड मल्टीपल इंजरीज, क्रॉनिक लंग डिजीज कंडीशंस एंड साइनाइड पॉइजनिंग एंड कोविड-19। ठीक है, तो कोविड-19 से न्यू वायरस है जो कि 2019 के अंदर जो हमने इसको एज ए पैंडेमिक इसको डील किया था। तो ये जो कंडीशंस है इसमें भी क्या होता है लेटर कंडीशंस के अंदर निमोनिया के केसेस के अंदर फिर, और निमोनिया के बाद में इसको एटिलेक्टिसिस वाली कंडीशंस डेवलप होती है कोविड कंडीशंस के अंदर, जिसका जो मेन वायरस होता है SARS-CoV-2 वायरस। तो ये क्या करता है अपने लंग्स जो टिश्यू हैं उसको क्या करता है इन्फेक्टेड करता है, और उस कंडीशन में भी हमें ऑक्सीजन की नीडेड होती है। ऑक्सीजन एज ए प्रेस्क्राइब्ड ड्रग, बिकॉज ऑक्सीजन इज ए ऑक्सीजन जो होता है एक ड्रग्स के रूप में भी अपन इसको यूज़ लेते हैं। जब कंडीशंस क्या हो जाती है, पेशेंट जब हॉस्पिटलाइज होता है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन जो होती है वो हमें एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर, प्रॉपर कंसंट्रेशंस के अंदर डिलीवर करना होता है। इसलिए हमें यहाँ ये बोला है कि ऑक्सीजन ये प्रेस्क्राइब ड्रग्स है, तो मस्ट बी रिटन बाय द डॉक्टर। हमेशा ये देखना है कि डॉक्टर के द्वारा या डॉक्टर या फिजिशियंस के द्वारा ये प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड शुड बी डेटेड बाय द डॉक्टर, किस डेट को फिजिशियन ने, किस डेट को डॉक्टर ने इसको आपकी फाइल के अंदर, पेशेंट की फाइल के अंदर मेंशन किया है, वो भी हमें एक निर्धारित होना चाहिए, वो भी देखना चाहिए। डॉक्टर मस्ट बी इंडिकेटेड ड्यूरेशन ऑफ O2 थेरेपी, कितने दिन तक, कितने टाइम तक वो ऑक्सीजन थेरेपी उसको चलेगा, वो भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, O2 concentrations must be prescribed. What is the concentration बोले तो what is the FiO2 will be given to the patient, how much amount of O2 concentration will be given, that is mentioned on the file of the patient, and the flow rate must be prescribed. Thank you for watching this video.